Hello everyone. Good evening, children. I hope everyone is fit and fine, and I feel so happy to see some of my old students again. So, children, today we are going to start with this subject. It's one of my favorite subject. In fact, I started my teaching career with this subject, DSIP. Okay. So DSIP is basically digital signal image processing, and it is a combination of two subjects. Those two subjects are first digital signal processing. DSP is a complete subject in itself, plus image processing. Image processing is also a complete subject in itself. If you look at electronics syllabus, DSP उनको एक 100 मार्क का सब्जेक्ट है और इमेज प्रोसेसिंग नाउ इट्स 80 मार्क्स राइट नाउ 80 मार्क का सब्जेक्ट है और इमेज प्रोसेसिंग उनको दूसरा 80 मार्क का सब्जेक्ट है. तो बेसिकली आप लोगों को दो फुल फ्लेज सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया है DSIP, डिजिटल सिग्नल इमेज प्रोसेसिंग. तो ये जब सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्या क्या बताऊं और कितना पढ़ाऊं, बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हम बता सकते हैं, जो हम डिस्कस कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है. हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चैप्टर से, जिसे हम कहते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. मतलब जो सबसे बेसिक चैप्टर है इसका, डिस्क्रीट टाइम signals and systems. So basically when I was just going through your syllabus, children, what I saw was there are altogether around 6 modules, 3 modules of DSP and 3 modules of IP. So 50% of the time is given to DSP and another 50% of the time is given to image processing. I would first start with this signals and systems wala chapter, and to start that we would discuss सबसे पहले what exactly is a signal. So आज का lecture being the first lecture, I'm not going to teach you बहुत ज़्यादा, but हम थोड़ा सा बेसिक्स बात करेंगे, सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, क्या टाइप के सिग्नल्स होते हैं वो पढ़ेंगे, क्या ऑपरेशंस होते हैं सिग्नल्स में वो पढ़ेंगे, ठीक है. और फिर आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है, क्लासिफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है और बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ओके नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द फ्यू रूल्स ऑफ दिस बैच. रूल नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टाइम. ओके, सो अभी मैं पिछले 3 महीने से ऑनलाइन बैचेस ले रही हूँ. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज you all have known me for last 3 years. This is your final year, so you've known me for last 3 years, and one thing that Ruchi ma'am is very famous about is not coming in time or not starting in time. But this COVID and this lockdown has changed things tremendously. So last 3 months के experience से बोल रही हूँ कि हम ना ऑनलाइन लेक्चर्स एकदम परफेक्ट डॉट इन टाइम स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट रूल ऑफ द बैचेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टाइम. ओके, द सेकंड रूल इज यू हैव टू sit with your notebook and pen, children. Everything that I'm going to put on the screen, you're supposed to copy it. I'm going to give you time to copy, and you're going to maintain your notebook just like we do in normal classroom lecture. This entire DSIP batch is going to be online. ना ये classroom teaching नहीं है, ये online batch है. मैं 100% syllabus आपका online complete करने वाली हूँ. तो आपको एक अच्छा notebook maintain करना है और हर lecture में notebook के साथ बैठना है. Rule number 3, I am going to send you the recording of each and every lecture after the lecture is done. So जिस दिन लेक्चर है उसी दिन शाम को आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं until your exams. You cannot download it, you cannot forward it, but you can view it multiple number of times. So कभी since all of us stay in कर ले, कभी ऐसा हो गया कि लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है और आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा. आप उस रिकॉर्डिंग को देख के अपना नोटबुक अप टू डेट कर सकते हो और अपने आप को भी अप टू डेट रख सकते हो, ठीक है. सो दैट्स थर्ड थिंग. Fourth thing, any doubts and difficulties, you know that I'm just one phone call away, and we're going to make lot of fun, lot of masti while studying this chapter. It's a wonderful, wonderful subject. Okay. Now coming back to my signal, तो मुझे कोई बताएगा सिग्नल क्या है? सिग्नल जो भी आप मुझे बताओगे, that is going to be through chat. आप हमेशा म्यूट रहोगे, तो चैट के ऊपर बहुत सारी बातें करनी है ताकि आप मुझसे कम्युनिकेशन करते रहें. सो इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन. मेरे साइड से मैं बात करूंगी, आपके साइड से आप लिख के कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है. सो मुझे बताओ सिग्नल क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिग्नल अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सिग्नल? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स.
Harshada and Lakshmi, Namrata, Ruhi, all my students. Tanish, Vidyam, bolo kya hai? It's a kind of information. Okay, very good. What else? Kind of information. Very correct. और क्या है? What exactly is a signal? What exactly is a signal? सपोज कोई ऐसा बोला, अरे यार वो तो देख तेरे को सिग्नल दे रही है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब कुछ, इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क. ओके children, can I say signal is anything which is carrying some information? Yes, it is something which is carrying information, and that information goes from the sender or the transmitter to the receiver. A signal could be anything. It is some physical quantity which carries information. So this word information here is very important. A signal is nothing but a physical quantity which carries information from the transmitter to the receiver. Correct? Now there are different type of signals. Like for example, if you ask me, बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स होते हैं. 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल सिग्नल. सो वन डायमेंशनल सिग्नल का मतलब वो सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है. जैसे फॉर एग्जांपल इसको तो हर कोई पहचानता है ना, ऐसे हर कोई जानता है, कंप्यूटर का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, ये बनाया मतलब सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है आपके मुंह में? ये कौन सा सिग्नल है चिल्ड्रन? इट्स अ very good. It's a sine wave. So sine wave means what? It is sine t. Can I say it is sine t? So this entire signal that I have written is just in terms of t. So इसीलिए वन डायमेंशनल. मतलब कोई भी सिग्नल जो सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे वन डायमेंशनल सिग्नल बोलते हैं. ऐसा कोई सिग्नल जिसे दो वेरिएबल्स यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए. Okay, like for example, this is nothing but an image. और कोई भी इमेज का ये पिक्सल उठा लू मैं, पिक्सल. ओके, पिक्सल इज, you always know it is nothing but picture carrying element. तो किसी भी पिक्सल को रिप्रेजेंट करना है तो इसे f of x, y करके रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब कितने वेरिएबल्स लगे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए? दो वेरिएबल्स लगे. तो इमेज इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल सिग्नल. Sine wave is nothing but an example of one dimensional signal. Are you understanding children? तो इस तरह से अलग अलग डायमेंशनल के, मल्टी डायमेंशनल के सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं पता है आपको? इट इज some wave which is represented using r and theta and phi. मतलब कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए. तो ऐसा कोई सिग्नल which is represented using 3 variables is called as 3-dimensional signal. So what have you studied from this particular discussion? That signal is a physical quantity which carries certain information from the transmitter to the receiver. For example, one-dimensional signal sine wave, two-dimensional signal image, three-dimensional signal electromagnetic wave. Children, please come to the chat section to let me know that this definition of signal is clear to everyone. Yes? Is this definition of signal clear to everyone? Quickly write a yes. Okay, very good. So अपना notebook खोलो बढ़िया से, उसमें हेडिंग डालो. चैप्टर का नाम है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज क्लोज टू 20 to 25 marks. Yes children, it dominates your syllabus. This particular chapter has got a weightage of around 20 to 25 marks. चैप्टर का हेडिंग डालो और मैं सिग्नल का डेफिनेशन डिक्टेट करूंगी. Ready? A signal is defined as any physical quantity a signal is defined as any physical quantity which carries some information,
from source to destination. From source to destination. For example, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए. 1 डायमेंशनल साइन वेव बना दो. 2 डायमेंशनल इमेज बना दो. 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके वेरिएबल्स लिख दो. Write down the examples. कॉलेज सबके स्टार्ट हो गए हैं चिल्ड्रन? आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं? Yeah, and I'm sure if they have started teaching you DSIP, this is the only chapter that they start with. When I started my teaching career in the year 2009, this was the first subject that I had taken. So although now I'm taking the subject after like I think 5 years के बाद मैंने उठाया आज ये वापस subject, but that kind of attachment I've got with this. हो गया. जैसे ही हो जाता है आपका लिख के आपको डन करके लिखना है. एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जैसे कॉपी करके हो जाएगा आपको डन करके लिखना है. हाँ, तो डन इज लाइक एन इंडिकेशन विच वी आर गोइंग टू यूज. या परफेक्ट परफेक्ट डन लिखा है मतलब आपका ये हो गया है. करेक्ट. ऑलराइट. अच्छा एक बात बताओ, ये पूरे सब्जेक्ट में हम जो सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं पहले उस सिग्नल्स की पहचान करते हैं थोड़ी सी, है ना. थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. चलो यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स. ऑफ कोर्स हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे बहुत आगे, लेकिन इन जनरल अगर आपको पूछ लिया कि भाई कौन से 2 टाइप के सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप क्या बोलोगे? मतलब ये किसी भी स्टूडेंट को, इंजीनियर नहीं हो तो भी चलेगा, ये स्टूडेंट को आ जाएगा कि कौन से 2 टाइप के सिग्नल्स आपको पता है या कौन से टाइप के सिग्नल्स एग्जिस्ट. वेरी गुड. ओके, द आंसर इज ऑलरेडी हियर. परफेक्ट परफेक्ट. Analog and digital. Absolutely right, children. So everybody knows that there's something called as analog signal, and then there is something which is called as a digital signal. And all of us can at any point of time in life distinguish this analog and digital with 5 points each. Analog पुराना है, digital नया है. analog में error है, digital में नहीं है. analog बहुत obsolete है, digital अभी latest नया है. ऐसे हम बहुत सारे distinguishing points बना सकते हैं ना इसमें. but हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये पूरा सब्जेक्ट जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये सेमेस्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ना तो हम एनालॉग के साथ खेलेंगे और ना ही हम डिजिटल के साथ खेलेंगे. हम इसमें एनालॉग और डिजिटल के बीच में एक सिग्नल होता है उसके साथ खेलने वाले हैं, और उस सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं. ऑनेस्टली पता है डिस्क्रीट को कोई पहचानता ही नहीं है. हम एनालॉग और डिजिटल बोल देते हैं, डिस्क्रीट को कोई पहचानता नहीं है. सो लेट अस फर्स्ट सी जर्नी कि ये एनालॉग टू डिजिटल की जर्नी क्या है. ठीक है, मुझे बताओ चिल्ड्रन, एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है? कहना इस एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है कंटिन्यूअस सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल. अगर ड्रॉ भी करना पड़े तो हम अपना द फेमस साइन वेव ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये साइन वेव क्या है? ये साइन वेव एनालॉग सिग्नल है. सिग्नल विच कंटिन्यूअसली वेरीज विथ टाइम इज कॉल्ड एज एन एनालॉग सिग्नल. ये ना डेफिनेशन उसका. which exists at every instant of time is called as an analog signal. ये सारे definitions है. इस एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल का अगर हम सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग एक ऑपरेशन होता है चिल्ड्रन. सैम्पलिंग का मतलब पता है क्या होता है? अगर सही तरीके से समझाना है तो मैं आपको बता दूं. सैम्पलिंग का मतलब मेरे हाथ में ना एक सॉ है. सॉ मतलब वो कारपेंटर यूज करता है ना लकड़ी काटने को. ऐसा मेरे हाथ में एक सॉ है और मैं अपने सिग्नल को कट 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 ऐसे ना कट करने वाली हूं. तो जब हम अपने इस एनालॉग सिग्नल को
सैंपल करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, करेक्ट। तो वो क्या बन जाता है, वो एक सिग्नल बन जाता है। ये जो टी है ना, सबसे पहले तो ये टी जो है एन से रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग, द टी इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एन। और हमने ऐसे कट कर दिया है, ठीक है, तो हम इसे कट करेंगे, पता है कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखने लगेगा। ये एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ एन है। चलो, क्या आपको साइन वेव अभी भी दिख रहा है? सिर्फ यस या नो में जवाब दो, क्या आपको साइन वेव अभी भी दिख रहा है? हाँ, साइन वेव तो हमको अभी भी दिख रहा है। ये देखो ना, मैं अगर इसे ऐसा थोड़ा सा रफली जोड़ने की कोशिश करूं, है ना, तो साइन वेव तो हमको अभी भी दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फर्क है। हाँ, आप कंटिन्यूसली हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट हमको सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं, हमको 5 और 5 यहाँ पे 10 सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं, और हर सैंपल को हम ऐसा गिन सकते हैं, ये मेरा एक सैंपल, ये मेरा 2 सैंपल, ये मेरा 3 सैंपल। तो ये होता है सैंपलिंग के बाद। चिल्ड्रन, फिर इस सैंपलिंग के बाद वाला जो स्टेप है ना, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे कोई अगर ये पूछे कि कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, हम बोलते हैं भाई 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल। तो वैसे किसी ने अगर ऐसे पूछ लिया ना कि एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ये रटा हुआ आंसर होता है, लेकिन एग्जैक्टली सैम्पलिंग के बाद क्या होता है और क्वांटाइजेशन के बाद क्या होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इक्वेटिंग इट टू द नियरेस्ट इंटीजर, आप ऐसा बोल सकते हो, या इक्वेटिंग इट टू सम प्री डिफाइंड वैल्यूज। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो क्या ना ऐसे चिल्ड्रन, डिजिटल का मतलब क्या होता है? जीरोस एंड वंस होता है, यस और नो? डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब होता है जीरोस एंड वन, बाइनरी, करेक्ट ना? इसका मतलब होता है जीरोस एंड वन, दैट इज बाइनरी। तो क्वांटाइजेशन क्या करता है, हमारे किसी भी सिग्नल को या तो जीरो बना देता है या वन बना देता है। सो बेसिकली क्वांटाइजेशन के पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर मेरा वैल्यू रेफरेंस के ऊपर है, उसे वन बना दो, मेरा वैल्यू रेफरेंस के नीचे है, उसे जीरो बना दो। तो इसके वजह से जब भी हम किसी सिग्नल का क्वांटाइजेशन करते हैं, या तो वो सिग्नल जीरो बन जाता है या फिर वो सिग्नल वन बन जाता है। तो ये है जर्नी चिल्ड्रन। सबसे पहले हमारे पास है एनालॉग सिग्नल, उसके बाद मैंने किया सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद जो मुझे मिला उसे कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, और फिर मैंने किया क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बाद जो हमें मिला उसे कहते हैं डिजिटल सिग्नल। सो इज दिस एंटायर जर्नी ऑफ एनालॉग टू डिजिटल क्लियर टू एवरीवन? यस या नो? एनालॉग को किया सैम्पलिंग, उससे मिला डिस्क्रीट, डिस्क्रीट को किया क्वांटाइज, उससे मिला डिजिटल। हम किस में काम करने वाले हैं चिल्ड्रन? हम आज और ये पूरे सेमेस्टर में डिस्क्रीट, हमको एनालॉग से कोई लेना देना नहीं है, हमको डिजिटल से भी कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ये सब्जेक्ट का नाम डिजिटल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग है, पूरे सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करने वाले हैं, मतलब एन पे काम करने वाले हैं, वेयर दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल्स। ये नोट करके कॉपी कर लो, ये जो कुछ भी स्क्रीन पे है उसे नोट करके कॉपी कर लो फास्ट। एनालॉग को सैंपल किया, डिस्क्रीट मिला, डिस्क्रीट को क्वांटाइज किया, डिजिटल मिला। कैसे हो जाता है अपना डन? कुछ बच्चे हैं अभी एंटर कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगा रुचि मैम का लेक्चर है 5 बजे, तो कहाँ 5 बजे शुरू करेगी, वो तो 5:30 को ही शुरू करेगी।
All right, students. So going ahead with the topic now, we will after studying what exactly is discrete signal, मतलब अब ये चीज तो अपने दिमाग में एकदम क्लियर हो गई कि हाँ भाई discrete signal क्या है. हम पढ़ेंगे something which is called as types of signals. मतलब कौन से basic standard type of signals होते हैं जिनके ऊपर हम काम करने वाले. तो स्टैंडर्ड सिग्नल में सबसे पहला सिग्नल जो आता है उसे हम यूनिट इंपल्स सिग्नल कहते हैं. चलो, ये यूनिट इंपल्स सिग्नल का दूसरा नाम है डेल्टा सिग्नल. डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है इसे. इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेल. सो डेल ऑफ एन का डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्वल टू 1 व्हेन एन इज 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. ये जो हमारा सिग्नल है डेल सिग्नल दिखता कैसे? इधर एन है, ये डेल ऑफ एन है. एट एन इज इक्वल टू 0, magnitude is 1. So this is how any del signal is represented. The second standard signal, which is very famous, it is called as unit step signal. ये जो मतलब चैप्टर बोलो या ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें ना मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं. ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम सीखेंगे जिससे ना बहुत आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट को क्रैक करना. सो यूनिट स्टेप सिग्नल पता है क्या होता है? मैं पहले आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब यू ऑफ एन करके रिप्रेजेंट होता है. इसका मतलब यूनिट का मतलब 1 होता है. मतलब हर एक सैंपल पे इसका जो वैल्यू है ना 1 है. और कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है. तो सबका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली 1 है. और डॉट 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 का मतलब होता है इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑब्जर्व ओवर हियर इज चिल्ड्रन, ये जो ना n0 n1 n2 ये नंबर ऑफ सैंपल्स है. तो इट इज 1 if n is greater than or equal to 0, it is equal to 0 otherwise. This type of signal is called as unit step signal represented as u of n. Then we have another signal, the third type of signal जिसे हम कहते हैं रैंप सिग्नल. तो रैंप सिग्नल ना रैंप की तरह होता है. रैंप की तरह मतलब जैसे n बढ़ रहा है वैसे सिग्नल भी बढ़ रहा है. ये देखो ऐसा रैंप की तरह सीढ़ी की तरह बढ़ रहा है. ये n है, इसे r ऑफ n करके रिप्रेजेंट करते हैं. 0 1 2 3 4. 0 पे मैग्नीट्यूड 0, 1 पे मैग्नीट्यूड 1, 2 पे मैग्नीट्यूड 2, 3 पे मैग्नीट्यूड 3, 4 पे मैग्नीट्यूड 4. तो इसका डेफिनेशन है कि r ऑफ n n है अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. तो ये डेफिनेशन हुआ किसी भी रैंप सिग्नल का. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सिग्नल is called as exponential signal. So exponential signal is like an exponential curve. बट आप देख रहे हो मैं सारे सिग्नल्स डिस्क्रीट में ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ऑपरेशन मुझे सारे डिस्क्रीट में ही करने हैं. तो एक्सपोनेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज a raised to n if n is greater than or equal to 0. और कर्व है ना बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह दिखता है. अब उसे आप डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल समझ लो कि इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल समझ लो. 0 1 2 3 4 and so on. So ये मेरा x of n है which is nothing but a raised to n और ये मेरा n है that is number of samples. So children, these are the 4 different type of signals. These are the basic signals which we are going to use for doing any type of sum. Please put the heading type of signals and start copying. Put the heading type of signals and start copying. The subject is completely sums based. मतलब you do not have any theory which is asked. इस सब्जेक्ट में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है. थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. So like maths, you've got full chance of scoring full in this. Batch every Tuesday रहेगा children. Every Tuesday 5 o'clock we can fix if the time is comfortable. If you all want, I can even make it 6, but I would prefer 5. But since if you've got your colleges and all, then we can even make it 6 to 8 or 6 to 9 ऐसा. जैसे हो जाता है डन करो so that I'll change.
n is number of samples. मैंने n के बारे में ऑलरेडी पहले बताया है when I was teaching what is discrete signal. यही मैंने n को सर्कल करके लिख दिया था, n is number of samples. पूरे सब्जेक्ट में हम सिर्फ n की बात करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करेंगे, और हमारे सिग्नल इस तरह से डिस्क्रीट दिखाई देंगे. डिस्क्रीट का मतलब जहां पे आप सैंपल ऐसे काउंट कर सको. डन. Teaching on the screen like this, children, is it kind of giving you the classroom feeling? Of course, apart from the fact that you can't see me, I can't see you, which is inevitable for this semester, but is it kind of giving you a comfortable feeling? Yes? Good. Oh, Lakshmi has all of a sudden started messaging. I thought, what happened? She's quiet today. Are we good to proceed, children? Next, put the topic. Now, this is a 10 marks topic. हाँ? अब देखो, आज तो of course पहला लेक्चर है, तो 10 मार्क्स का मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन इसका पूरा बेस आज एक्सप्लेन कर दूंगी, और अगले लेक्चर में हम जो भी सम्स करेंगे वो इस बेसिक से रिलेटेड होगा, और उसका वेटेज 10 मार्क होगा. 10 mark compulsory topic. Put the heading operations on signals, students. Operations on signals. So we are going to study 4 different type of operations on signals. जिसमें सबसे पहला operation is called as shifting property. Shifting. अच्छे से सुनो मैं क्या क्या बोल रही हूँ उसके बारे में, ठीक है? सो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है चिल्ड्रन? सपोज मेरे पास कोई सिग्नल है x of n, तो ये सिग्नल आफ्टर परफॉर्मिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन विल बिकम x of n plus k. So it is shifted by how many samples? Shifted by k samples. So this k over here is basically indicating कि कितने सैंपल से मेरा सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? Now let us consider case 1, case 2. So what is my case 1? My case 1 is this k is less than 0, negative value. So मान लो कि अगर ये k जो है less than 0 है, negative value है, for example can I consider k is nothing but equal to -2? जब आप उसको less than 0 बोल ही रहे हो तो आप सीधा उसको -2 कंसिडर कर लो. मान लो कि मेरे पास एक सिग्नल है x of n, और इस x of n में ना 4 सैंपल्स है. ये एरो यहाँ पे बना रही हूँ. चिल्ड्रन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस एरो indicates n is equal to 0, मतलब it is nothing but the sample at the 0th position. n is equal to 0 पे magnitude 1 है, तो ये एरो हमेशा इंडिकेट करता है कि n is equal to 0 है. सपोज मैंने ये एरो यहाँ पे बनाया होता, इसका मतलब होता है n is equal to 0 ये है, तो इसके बाद वाला सैंपल n is equal to 1 हुआ, इसके पहले वाला सैंपल n is equal to -1 हुआ, और n is equal to -2 हुआ. आई बात समझ में? तो 0 क्या बताता है? 0 आगे और पीछे कितने वैल्यूज है वो बताता है. फिलहाल के लिए मैं 0 यहीं पे लिख रही हूँ. तो सपोज x of n है 1 2 3 4. मुझे क्या ड्रॉ करना है? मुझे ड्रॉ करना है x of n प्लस k, और k का वैल्यू -2 है, मतलब x of n -2. सबसे पहले तो x of n ड्रॉ करते हैं, तो कैसे आएगा अपना x of n वो देखते हैं. चिल्ड्रन ये n हो गया, ये x of n हो गया, ठीक है? ध्यान से देखो, n is equal to 0, n 1, n 2, n 3. What is the value of the sample at n is equal to 0? Magnitude is 1, तो ये मेरा magnitude 1 है.
फिर मेरा मैग्नीट्यूड 2 है, फिर अगले पे मेरा मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और फिर अगला मैग्नीट्यूड मेरा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। सबसे पहले तो चैट सेक्शन में आके बताओ कि ये x ऑफ n मैंने जो ड्रॉ किया ये सबके समझ में आया है? This x of n that I have drawn, children, is this clear to everyone? सबके समझ में आया ये x of n कैसे ड्रॉ किया है मैंने? परफेक्ट। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे x of n minus 2 ड्रॉ करना है। तो कभी भी याद रखो चिल्ड्रन, फॉर शिफ्टिंग जो भी ब्रैकेट में है उसको इक्वल टू 0 करना है, मतलब n माइनस 2 को इक्वल टू 0 करना है। अगर n माइनस 2 को इक्वल टू 0 करूंगी तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 2 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे जो n है, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, हर एक सैंपल को 2 ऐड करना है। मैं सब ट्रिक्स बता रही हूँ आपको सम को इजीली शिफ्ट करने के। चिल्ड्रन n का वैल्यू 2 मिला, आप n के सब वैल्यूज को 2 ऐड करो। तो सबसे कम वैल्यू था 0, 0 को 2 ऐड किया, 2 मिल गया, फिर 3, ये 4 और ये 5। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने n के हर वैल्यू को 2 ऐड किया, तो जो 0 था वो 2 बन गया, जो 1 था वो 3 बन गया, जो 2 था वो 4 बन गया, जो 3 था 3 प्लस 2 5 बन गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आ रहा है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ हम खेले ही नहीं है, हम सिर्फ n के साथ खेले हैं, तो इसलिए n चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चिल्ड्रन, ये जो सिग्नल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसे शिफ्टेड सिग्नल कहते हैं, इसे x ऑफ n माइनस 2 कहते हैं। क्या ये जो मैंने ड्रॉ किया है सबके समझ में आया? तो कैन आई से चिल्ड्रन, यहाँ पे अगर n नेगेटिव है, अगर n लेस देन 0 है, अगर n 0 है, अगर n नेगेटिव है, तो क्या हुआ है, मेरा सिग्नल डिले हुआ है कि मेरा सिग्नल एडवांस हुआ है? चलो, आई वांट टू नो, मेरा सिग्नल डिले हुआ है कि मेरा सिग्नल एडवांस हुआ है? डिले और एडवांस, राइट? फास्ट। दो लोगों ने आंसर दिया है और दोनों ने परफेक्टली राइट आंसर दिया है। हमारा सिग्नल क्या हुआ है? अब मुझे एक चीज बताओ, नहीं आपको ना फिजिकली नहीं देखना है कि सिग्नल आगे बढ़ा है कि पीछे, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो चीज पहले 0 से शुरू होने वाली थी अब वो 2 से शुरू हो रही है, मतलब डिले है कि एडवांस है? जो चीज पहले 2 बजे शुरू होने वाली थी अब वो 4 बजे शुरू हो रही है, मतलब डिले हो रहा है कि एडवांस हो रहा है? डिले हो रहा है। इसका मतलब इफ k is negative, if k is less than 0, then the signal is delayed, सिग्नल डिले होता है। आई बात समझ में सबको? यही मैं अब करने जा रही हूँ केस 2 चिल्ड्रन। सो व्हाट इज केस 2? यही मैं करने जा रही हूँ केस 2। सो व्हाट इज द सेकंड केस? केस 2, k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k जो है पॉजिटिव है, मतलब k इज इक्वल टू 2 है। अब अगर k इज इक्वल टू 2 है, मतलब जो मेरा x ऑफ n था वो x ऑफ n प्लस 2 हो गया, मतलब n प्लस 2 को इक्वल टू 0 करूंगी, मतलब n का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब जहां भी n है, मतलब वही है, कीपिंग द रेफरेंस सिग्नल सेम, जो पहले 0 से शुरू हो रहा था माइनस 2 से शुरू होगा, जो पहले 3 तक जा रहा था 3 माइनस 2 1 तक जाएगा। कीपिंग द रेफरेंस सिग्नल सेम। अब मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 4 मेरा मैग्नीट्यूड जो है सेम है। चिल्ड्रन, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन फॉर x ऑफ n प्लस 2। जो चीज पहले 0 से शुरू होने वाली थी अब वो चीज माइनस 2 से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवांस हो रहा है। इज द शिफ्टिंग ऑपरेशन क्लियर टू एवरीवन? चिल्ड्रन, क्या सीखा हमने शिफ्टिंग में? एकदम सिंपल, जो भी ब्रैकेट में होता है उसको इक्वल टू 0 करो, जो भी ब्रैकेट में होता है उसको इक्वल टू 0 करने के बाद जो भी n का वैल्यू आता है उस n के वैल्यू को ओरिजिनल n के वैल्यू में ऐड करो। अपना सिग्नल अपने आप या तो आगे जाएगा या अपने आप पीछे जाएगा। चिल्ड्रन, प्लीज कम टू द चैट सेक्शन टू लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस।
जैसे ही हो जाता है डन कर दो, so that I'll turn. Done, children? तो खाएगा खाना? Done, children? So shifting operation is one very very famous operation, and we're going to like really play with signals. हम लोग अगले lecture में जब sums करेंगे, we are going to do like different type of operations. हम shifting करेंगे, scaling plus shifting करेंगे, अलग अलग टाइप से सॉल्व करेंगे. ऑफ कोर्स 10 मार्क का सम आ रहा है, मतलब कुछ तो बहुत ही ट्रिकी पूछेंगे वो लोग. बढ़ो आगे. All right. So the second type of operation is called as folding operation. चिल्ड्रन फोल्डिंग को ना टाइम रिवर्सल भी बोलते हैं, बट मैंने ना हमेशा उसे फोल्डिंग करके ही आई थिंक ज्यादा देखा है, ज्यादा यूज किया. सो व्हाट इज दिस फोल्डिंग ऑपरेशन? द फोल्डिंग ऑपरेशन इज अगर x ऑफ n आफ्टर परफॉर्मिंग फोल्डिंग ऑपरेशन बिकम्स x ऑफ माइनस n, तो n जो है सीधा घूम के माइनस n हो जाता है. n घूम के माइनस n हो जाता है, मतलब अपना सिग्नल जो है फोल्ड हो जाता है. ठीक है, सो लेट अस टेक दिस वेरी सिंपल एग्जांपल. सेम ले रही हूँ, इधर n इज इक्वल टू 0. फोल्डिंग के बाद कैसे दिखेगा वो हम देखते हैं. पहले ये ओरिजिनल सिग्नल ड्रॉ कर रही हूँ. ये n 0 1 2 एंड 3, इसके जो मैग्नीट्यूड्स है वो है 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4. तो फोल्ड का मतलब सिग्नल घुमा दो, n जो है माइनस n हो जाएगा, 0 बन जाएगा माइनस 0. माइनस 0 करके कुछ नहीं होता है, मतलब वो 0 ही रहेगा. 1 बन जाएगा माइनस 1, 2 बन जाएगा माइनस 2 एंड 3 बन जाएगा माइनस 3. आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? Are we changing the magnitude? Not at all. We are not playing with the magnitude. The magnitude is not changing. So the magnitude here remains absolutely same. With the only difference कि जो पहले 1 का magnitude था अब वो -1 का है, जो 2 का था वो -2 का है, और जो 3 का था वो -3 का है. तो क्या कर दिया? घुमा दिया, सिग्नल को फोल्ड कर दिया. n will get replaced by -n. Copy. अभी तो समझो कि मैं सिर्फ अपने मूवी के कलाकार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. ये क्या कमाल करते हैं वो हम सम्स करेंगे तब पता चलेगा. अभी फिलहाल हम सिर्फ इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हें जान रहे हैं. डन.
The third type of operation is called as scaling operation. So children, scaling operation में क्या होता है? X of n after performing scaling operation becomes x of n, where this a is nothing but the scaling factor. Depending on the value of a, if a is greater than 1, you get downscaling, and if this a is less than 1, you get upscaling. वो कैसे होता है हम देखेंगे. अब जैसे x of n जो है वो बन रहा है x of an. Let us do an example. चिल्ड्रन इसको तो करने का बहुत सही ट्रिक है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझो. हाँ, मान लो कि x of n है मेरे पास 4 3 2 1 4 5 है ना. आज पहला दिन है इसलिए सिंपल सिग्नल्स ले रही हूँ. n is equal to 0. Find x of 2n. चलन कैन आई से x of 2n, मतलब मैंने फिलहाल यहाँ पे केस 1 थ्रो कर दिया है जहां a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. केस 1 a is greater than 1. If a is greater than 1 मतलब ये a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो a का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 कंसिडर किया है, इसलिए x of 2n. हम पहले ड्रॉ करेंगे x of n. 0 फिर 1 2 3, कितने सैंपल्स है? 0 1 2 3 4 5 सैंपल्स है. मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 4 है. लॉजिकली करेक्ट ड्रॉ करना है, मतलब 3 4 से छोटा दिखना चाहिए, 2 उससे भी छोटा दिखना चाहिए, 1 उससे भी छोटा दिखना चाहिए, दोनों 4 सेम दिखने चाहिए. स्केल यूज नहीं करना है लेकिन दिमाग यूज करना है, लॉजिकली करेक्ट यूज करना है. सो द हिंट इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन. स्केलिंग में अगर अंदर नंबर मल्टीप्लाइड है तो आप उसको डिवाइड करोगे n के साथ, अगर n के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है तो आप n के साथ उसे डिवाइड करोगे, एंड वाइस वर्सा. आई रिपीट, अगर नंबर n के साथ मल्टीप्लाइड है तो आप उसको n के साथ डिवाइड करोगे, एंड वाइस वर्सा. लाइक फॉर एग्जांपल ओवर हियर इट इज मल्टीप्लाइड, तो हम करेंगे उसे डिवाइड. डिवाइड मतलब 0 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अगर 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो कितना मिलेगा? 1/2. कैन अ सैंपल बी 1/2? देखो ये जो n है ना, write a note for yourself that n is always an integer children. n is always a integer. आप नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे गिनते हो? ये 2 सैंपल है, ये 3 सैंपल है, ये 4 सैंपल है, ये 5 सैंपल है, इस तरह से गिनते हो. आप कभी ऐसे तो नहीं बोलते हो ना ये 2.5 सैंपल है, ये 3.7 सैंपल है. मतलब नंबर ऑफ सैंपल, ये चीज जो है ये इंटीजर वैल्यू है, ये गिनती इंटीजर में होती है. तो इसके लिए मेरे पास फ्रैक्शनल की कोई जगह नहीं है. अगर n का वैल्यू 1/2 आ रहा है मतलब वो n का वैल्यू मेरे लिए नल एंड वॉइड है, वो n मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है. स्टूडेंट कैन आई से, जब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे n के हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइड बाय 2 0 रहेगा, लेकिन 1 डिवाइड बाय 2 कट हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा, 3 डिवाइड बाय 2 कट हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड बाय 2 2 रहेगा, और 5 डिवाइड बाय 2 कट हो जाएगा. जो कट हो गया वो गया, जो बचा वो अपना आंसर. 0 के साथ मैग्नीट्यूड 4 है, ये जो बचा उसके साथ मैग्नीट्यूड 2 है, और ये जो बचा उसके साथ मैग्नीट्यूड 4 है. ये जो मैंने किया उसे x of 2n कहते हैं, उसे सैम्पलिंग कहते हैं. सबसे पहले तो बताओ जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, क्या ये सबके समझ में आया? चिल्ड्रन ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया ये सबके समझ में आया है? इन वन वर्ड, अगर नंबर n को मल्टीप्लाइड है आप उसको डिवाइड करो, एंड वाइस वर्सा. तो आप मुझे बताओ कि जो चीज पहले 0 to 5 जा रही थी अब वो सिर्फ 0 to 2 जा रही है, मतलब क्या आपको डाउन स्केलिंग दिख रहा है? इसलिए मैंने कहा था कि जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा डाउन स्केलिंग होगा, हमेशा डाउन स्केलिंग होगा. देयर इज वन मोर वर्ड, यू विल गिव मी दैट वर्ड चिल्ड्रन. जो चीज पहले 0 to 5 जा रही थी अब वो 0 to 2 जा रही है, तो हमारा सिग्नल एक्सपांड हुआ कि कंप्रेस हुआ? हमारा सिग्नल एक्सपांड हुआ कि कंप्रेस हुआ? वेरी गुड, कंप्रेस हुआ. इसका मतलब स्केलिंग में अगर a इज ग्रेटर देन 1 देन यू गेट सिग्नल कंप्रेशन. ओके, इफ इट इज लेस देन 1 देन यू गेट सिग्नल एक्सपांशन. कॉपी करो इसे फटाफट. केस 2 करना है, पहले इसे कॉपी करो.
स्केलिंग का सिंपल हिसाब है, अगर नंबर मल्टीप्लाइड है आप उसे डिवाइड करो, अगर नंबर डिवाइडेड है तो आप उसे मल्टीप्लाई करो। ऑपोजिट ऑपरेशन, हिंट में लिख दो परफॉर्म ऑपोजिट ऑपरेशन। ये जो हिंट है ना, उस हिंट के लिए लिख दो परफॉर्म ऑपोजिट ऑपरेशन। I'm sorry. So children, case two क्या था? Case two, a is less than 1. So if a is less than 1, मैंने assume किया a का वैल्यू हाफ, मैं म्यूट में थी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, I was on mute. a का वैल्यू हाफ मतलब n by 2. तो अगर 2 डिवाइडेड है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 बन गया 4, 3 बन गया 6, 4 बन गया 8, 5 बन गया 10।
तो जो सिग्नल पहले 0 to 5 था वो है अब 0 to 10, इसलिए हम बोलते हैं सिग्नल एक्सपांशन. Children, this being the first lecture, we are going to keep it short. Next lecture रहेगा Tuesday, same timing. It is going to be 5 to 7. There are certain students who haven't confirmed their admission. Kindly make sure that you talk to the coordinators and confirm your admission, children. आपने अपना एडमिशन अगर कंफर्म नहीं किया, प्लीज टॉक टू द कोऑर्डिनेटर्स, कंफर्म योर एडमिशन. आप लोगों को एडमिशन कंफर्म करते से ही लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. Okay, children. So can we stop for today? Yes. Please come to the chat section to let me know कि आज हमने जो भी कुछ पढ़ा है आप सबको समझ में आया है वो. Whatever we have studied today, right from definition of signal to what are the different types of signal, delta signal, unit step signal, to what are the different type of operations that we perform on the signal. Scaling operation, shifting operation and folding operation. Children, ये सारी चीजें आपको समझ में आई? Please come to the chat section to let me know that you have understood. Very good, very good. So children, इसी के साथ हम आज का लेक्चर करते हैं खत्म. नेक्स्ट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट ट्यूसडे, सेम टाइमिंग. Of course, I'll be taking all previous year's questions. Don't worry about it at all. ठीक है? So see you all next Tuesday, same timing. Kindly confirm your admission before the next lecture, children. Tata, bye bye, take care.